ओके आपका तो सर को पापा को पूछ ले, क्या ना पापा खोलूं मैं इसमें हरमन का, बता दे पापा को, पूछ ले, यहाँ बैठा रहेगा वो मेरे पास, पूछ ले। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सुशांत, प्रीशा, मनप्रीत, तनिष्का, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? फाइन। Okay, today we are going to start with the principles of accounting. I want to share one PowerPoint slide with you. Okay, after that we will have a brief discussion about the various principles. We have already done 4 principles. One is, so one by one you have to tell only the name, fine, and don't repeat the name of the principle. Tanishka, first principle beta, name of first principle. Business entity. Business or separated. Yes. And Manpreet, name of second principle. Money measurement concept. Yes, good. Prisha, third principle. Ma'am, going concern concept. Yes, good. Krish, name of fourth principle. Accounting period. Accounting period concept. Yes, good. Now you have to tell only one line regarding the each principle. Okay, let's start with the fourth one. Okay, Tanishka, can you let me know about accounting period concept? Only one line. Yeah, it's a time of like accounting period का time होता है जिसमें last end मतलब 31st March को सारे assets and liabilities and profit and loss का records बनाना पड़ता है ताकि वो information share कर सके internal और external. Manpreet, can you tell me something about going concern concept? Yes, ma'am. Ma'am, in this way, we should always think that our business should go for a long time. It will have a long lifespan in the future, so it will be beneficial for us. Good. Okay, Prisha, can you tell me something about money measurement concept? Yes, money measurement concept. Prisha, can you let me know about money measurement concept? Ma'am, it states that the information has to be recorded in the monetary terms and not in physical terms. Okay. Krish, can you tell me something about business entity concept? Yes, Krish. It means that business and the owner are two different things. Are two different entities. हाँ बोलो बेटा. Ma'am, the business and the owner are two different entities. Okay, Utsav and Sushant, they both have joined. Everyone click at the option start video. Everyone click at the option start video so that we can have face-to-face interaction. Yes, so that we can feel that we are in class. Yes. Now my question is for Utsav. Utsav, good morning. Utsav, tell me something about business entity concept. We have already done. Just give me brief introduction. Utsav, is my voice not audible to you, Utsav? Sushant? Yes, Sushant? Yes, ma'am. Sushant, first click at the option start video. Yes, beta, good. Yes, Sushant, tell me something about separate entity concept or business entity concept. Ma'am, in accounting, a business or an organization and its owner are treated two separately. Okay, fine, fine. Yes, Prisha. Yes, Prisha. Prisha. Yes, ma'am. Okay,
Now already we have done the 4 concepts and have just discussed with them. I'm going to just revise that concepts. First one is separate entity concept. Second one is money measurement concept. Third one is, yes, can anybody let me know? Third one is Going concern. going concern concept. Very good. And fourth one is, yes, Accounting. accounting period concept. Fine. So first we are going to discuss about the first one. Only just brief introduction. Separate entity concept. It means that owner and the business are separate from each other. Okay. One new student is among us. That is Sanvi Agarwal. Beta, welcome to the 11th accountancy class. So everyone, I'm just want to introduce one new student. She's among you. She is Sanvi Agarwal. Okay. Sanvi, actually beta, we have started with the second chapter of accountancy, and that is the main principles of accountancy. Okay. We have done till only 5 principles, but I'm going to revise that principles again. Fine. So that you are not having any problem. Apart from that, we have done first chapter. Just go through the first chapter once in case you are having doubt. Okay, I can just revise in this session only. Fine, Sanvi? You want to say something? You can unmute yourself and you can say. Thank you so much, ma'am. I think I'll be able to get those things. Yes, you want to say something, Sanvi? No, ma'am. Okay, okay. Feel comfortable. Actually, till now, we have done some terminologies of accountancy. Okay. Just give me your WhatsApp number. Then I will just share that worksheet with you. Okay. We have done just terminologies, that accounting terms. After that, we have started the first chapter. Now we are with the second one. And we are following NCRT. Fine, beta? You are having Yes, ma'am. NCRT with you? Ma'am, I don't have it right now, but I can arrange it. No problem, beta. I will send the PDF of each and every chapter. Fine. The students you are so also much, ma'am. having the PDF of chapters and some are having books. Okay. Yes, ma'am. Feel free to ask anything, whatever you want in this session only. No problem. Fine. Okay, ma'am. So, okay. All of you just take out your copies, beta. I'm going to revise these things again, but you have already written in your copies. I want to see your copies with you. Parki, good morning. Yes. Good morning. Open your copies, everyone. First one. Yes, Sanvi, you can also start writing. Write some Fine, ma'am. points, because student used to write some little bit points. Fine. Fine, Write ma'am. the accounting principles of accounting. Write number 1. That is, after that I will show you the PowerPoint slide. Okay? For 2 minutes only I will have the brief introduction. Then I will show you the PowerPoint slide. First one is first principle, business entity concept. According to this concept, owner and the business are 2 separate things. It means if the owner invest money in the business, that the business has to return that money to the owner. Fine. Okay. My question is there for Manpreet. Manpreet? Yes, ma'am. Yes. Tell me one thing. When owner invest money in the business, then for what name it should be written? Ma'am, capital. Yes, very good. सानवी लिसन बेटा, जब ऑनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, फाइन, तो हम बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखते हैं, ऑनर का नाम नहीं लिखते हैं, पर उसकी नाम की जगह हम वर्ड लिखते हैं कैपिटल. फाइन बेटा, वी विल राइट द वर्ड कैपिटल. इससे क्या होता है, हम हर एक कंपनी की हम बैलेंस शीट या हर कंपनी की रिपोर्ट देख सकते हैं, क्योंकि हमें कैपिटल वर्ड से क्या पता चलता है कि इस कंपनी जे ऑनर का मनी है. फाइन. तो व्हेनेवर द ऑनर स्टार्ट द बिजनेस, ही विल राइट द वर्ड कैपिटल. आप जब बेटा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट लिखोगे ना थ्योरी में, पहली लाइन आपको पता है आपको क्या लिखनी है, कि बिजनेस एंड द ऑनर आर 2 सेपरेट थिंग्स. ठीक है. अब इसके एग्जांपल्स में आपने क्या लिखना है, व्हेन बिजनेस इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस, देन इट इज रिटन कैपिटल. When the owner withdraw from the money in the business, it is known as drawings. तो ये नोट कर लीजिए कहीं भी कि आपको जब भी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आएगा एग्जाम में, आप एक इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और 2 एग्जांपल्स में क्या लिखेंगे, ड्राइंग की और कैपिटल. फाइन.
नेक्स्ट है हमारे पास मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन बिजनेस की वन टू डे हैपनिंग, डे टू डे हैपनिंग्स, उसको हमने रिकॉर्ड करना है मॉनेटरी टर्म्स में, फिजिकल यूनिट्स में नहीं। इसकी एग्जांपल बड़ी इजी होगी, आप कैसे लिखोगे? सपोज कीजिए हमारे पास लैंड है 2 एकड़, हमारे पास फर्नीचर है 20 टेबल्स, हमारे पास चेयर है 40। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि हम हर चीज की वैल्यू लिखेंगे इन टर्म ऑफ रुपीज। लाइक हम लिखेंगे हमारा लैंड एकर्स में नहीं लिखेंगे, बल्कि उसको रुपीज में लिखेंगे 10 लाख। चेयर्स हम अमाउंट में नहीं लिखेंगे, बल्कि रुपीज में लिखेंगे 1000। टेबल्स को हम अमाउंट में नहीं लिखेंगे, बल्कि रुपीज में लिखेंगे। इससे क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि हमारी कंपनी की टोटल वर्थ क्या है। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे आपकी कंपनी की टोटल वर्थ क्या है, तो आप ये थोड़ा ना कहोगे 2 एकड़ मेरे पास लैंड है, 10 चेयर है, नहीं। उससे उसको क्या पता चलेगा, वेदर यू आर स्ट्रॉन्ग, वेदर यू आर वीक। तो आपको अपनी कंपनी की वैल्यू बतानी पड़ेगी इन द मॉनेटरी टर्म्स। क्लियर है? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमने हर चीज को कनेक्ट करना है, हर चीज को कन्वर्ट करना है मनी फॉर्म में। क्लियर है बेटा? अब हमारा थर्ड आता है कॉन्सेप्ट। फर्स्ट था हमारा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। थर्ड क्या आ गया हमारा? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हमेशा हम ये एज्यूम करते हैं कि जो बिजनेस चलेगा इट विल गो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द बिजनेस विल इनडेफिनेटली गो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स हम हमेशा ये सोचेंगे कि हमारा बिजनेस 1-2 महीनों के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी बहुत सालों तक हमारा साथ देगा और हम इसे बहुत हाइट्स तक लेके जाएंगे। तो इसमें एग्जांपल हम क्या लिखेंगे? इसलिए हम अपनी एसेट्स को किस में रिकॉर्ड करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट में। इसकी एग्जांपल नोट कर लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि आवर बिजनेस विल गो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए हम अपनी एसेट्स को किस में लिखते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट में। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट जिसपे हमने एसेट को परचेज किया है। लास्ट वन, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है कि जो बिजनेस है, जैसे कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ने कहा था बिजनेस चलेगा बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है कि अगर हम इतने समय तक चलाते रहेंगे तो हाउ वी केम टू नो वी आर हैविंग द प्रॉफिट और लॉस। तो उसमें उसने कहा है कि हम बिजनेस की पूरी लाइफ को छोटे छोटे स्पैन में बांट लेंगे। वी विल डिवाइड द होल लाइफ ऑफ द बिजनेस इन शॉर्ट स्पैन। शॉर्ट स्पैन कितने समय का होगा? 1 साल का। अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग हम 1 साल के बाद अपने बिजनेस को स्टॉप करेंगे फॉर अ वाइल। वी विल स्टॉप अवर बिजनेस फॉर अ वाइल। कितने समय के बाद? 1 साल के बाद। और हम तब क्या करेंगे? तब हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। फाइन, ये हमने 4 चीजें की थी। तो प्लीज आई वांट टू शेयर वन स्लाइड विद यू, ताकि आप इनको अच्छे से एक बार देख लें। फाइन, is it visible to everyone beta? Tanishka, is it visible? Yes, ma'am. Okay. This is the definition of accounting. Just have a look. This we have already done, beta. Accounting is the art of recording, summarizing, reporting, and analyzing financial transaction. The process of recording business transaction is called accounting. Fine, this we have already done. आपको ये मैंने बताए थे parts. सबसे पहले record करेंगे, समराइज करेंगे, रिपोर्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे। रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट, जिससे कि हमें पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब उससे कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन कौन निकालता है? इंटरनल यूजर एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर। ठीक,
This we have already done. GAAP. GAAP refers to the rules or guidelines adopted for recording and reporting of business transaction in order to bring uniformity in the preparation and presentation of financial statements. आपको मैंने discuss किया था last time GAAP. It means the generally accepted accounting principles. What are the main motive of preparing the principle is to get uniformity in preparation and presentation of financial statements. Accounting principles. Yeah, this we have already done. The accounting principles are divided into two categories, that is concepts and conventions. Concepts क्या होता है? Basic assumptions, जो कि हम future के बारे में assume करते हैं. और कन्वेंशंस क्या है? जो कि हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशन जो कि हमेशा हम फॉलो करते हैं. तो ये जो डेफिनेशंस है ना अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस आपको क्लियर होनी चाहिए कि कंसेप्ट्स क्या है और कन्वेंशंस क्या है. फिर से बता रही हूँ, कंसेप्ट्स होते हैं हमारे बेसिक एजम्पशंस और कन्वेंशंस क्या होती हैं? कस्टम्स और ट्रेडिशन. कस्टम और ट्रेडिशन जैसे मैंने आपको बताया था ना, एट होम ओनली हम किसी फेस्टिवल्स पे कहते हैं दीज आर द कस्टम्स ऑफ अवर फैमिली, तो दीज आर द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. I cannot hear you. These are the basic principles which we have to study. Better go to that side. Fine. These are the principles जो कि आपको याद रखने हैं. Just count how many are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. बेटा these are total 13 and these are the basis of accountancy. आपको ये मेन प्रिंसिपल्स एक ही बार सारे मत लिखिए, डोंट टेक टेंशन. एक एक दिखाऊंगी ना तो एक एक लिख लेना, ठीक? अदरवाइज आई विल सेंड यू द नोट्स ऑफ पीडीएफ. और बेटा वन मोर थिंग, देयर आर सो मैनी पावर पॉइंट स्लाइड्स, सो मैनी वीडियोस रिलेटेड टू दीज प्रिंसिपल्स. व्हेनेवर यू गेट टाइम एट योर होम ना, तो जस्ट गो थ्रू दीज, बहुत सारी हैं. फाइन. नेक्स्ट. यस, दिस वी हैव ऑलरेडी डन. जस्ट रीड इट. This concept assumes that honor and business are two different entities. Entities बताया था. honor कौन है? ये एक अलग entity है. business क्या है? अलग entity है. एक entity दूसरे entity से उधार लेती है और उसको उधार देती है. It means that for the purpose of accounting, the business and its owners are to be separated as two separate entity. दोनों अलग हैं. इसमें देखिए कितने अच्छे से लिखा रखा है कि जब बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा देता है तो उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल, है ना? अच्छा मनप्रीत, वन क्वेश्चन फॉर यू. यस मैम. बताइए, यहाँ पे लिखा है ना बिजनेसमैन जब बिजनेस को पैसा देता है तो कैपिटल बोलते हैं, और जब बिजनेस से बिजनेसमैन पैसा लेके जाते हैं तब क्या बोलते हैं? विड्रॉ. हाँ जी. हम विड्रॉ. नहीं, जब वो विड्रॉ करते हैं तो क्या बोलते हैं? ड्राइंग. ड्राइंग्स. वेरी गुड. तो मैंने आपको बताया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में आप दो चीजों के बारे में एक्सप्लेन करोगे, वन इज कैपिटल एंड वन इज ड्राइंग्स. ठीक है, तो ये क्या है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आप सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है बेटा इसमें से? सानवी, you want to ask any question? No, ma'am. Okay. Ma'am, do we have to write this in fair notebook? Yes बेटा. Ma'am, we have to write this in fair notebook or not? नहीं, डोंट, नो नीड टू राइट, नो नीड टू राइट. आपको इसमें जो चीज अच्छी लग रही है ना, जो लाइंस अच्छी लग रही है, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू दैट यू हैव टू मेक द नोट्स. अगर आपको कोई लाइन अट्रैक्टिव लग रही है, इजी लग रही है, तो आप लिख सकते हो, क्योंकि बैक पे चैप्टर के बैक में बेटा वी आर हैविंग द क्वेश्चन आंसर ना, तो ये सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है. अगर आपको इसकी कोई लाइन बहुत अच्छी लगती है तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हो. राइट. और अगर आपको लगेगा कि मैम हमें स्लाइड एक बार और दिखा दीजिए, हमें कुछ लिखना है, तो आई कैन ऑल्सो शो यू अगेन. फाइन. Okay, ma'am. Yes. Money measurement concept. Money measurement concept says that only those transactions and happenings in the organization which can be expressed in terms of the money.
such as sale of goods or payment of expenses or receipt of income are to be recorded in the books of accounts. उसने कहा है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम ऑर्गेनाइजेशन में लिखते हैं जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी. जैसे कि हमने कोई सामान बेचा, कितने का बेचा, 1 लाख रुपए का लिख लिया. पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कितने एक्सपेंसेस किए, 2000 लिख लिया. रिसिप्ट ऑफ इनकम, हमें पैसा मिला, कितना, 50,000 लिख लिया. उसने कहा कि जिन चीजों को हम मनी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उन्हें ही हम लिखेंगे. फाइन. नाउ देयर इज वन क्वेश्चन फॉर धैर्य. There is one question for Dharya. Dharya, unmute yourself. Yes, Dharya, unmute yourself. Dharya, click at the option start video so that I can ask question from you. Yes, what happened, Dharya? Dharya, where are you? Yes. Utsav, unmute yourself. Where have you gone? Utsav, Dharya, Krish. Yes, ma'am. Krish, beta, there is one question for you. First of all, click at the option start video so that it will be comfortable for me to see everyone. Hanji. Yes. Krish, give me one example of that particular transaction which cannot be expressed in terms of money. Ma'am, appointment of new manager. Yes, good, very good. Now, Dharya, click at the option start video. I want one example from your side also. हाँ, धैर्य, कोई एक एग्जाम्पल बताइए जिसको कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी. कोई भी ऐसी हैपनिंग्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में विच कांट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी. अच्छा, अभी कृष्ण ने जो बताई थी वही बता दीजिए. यस धार्या. पारखी. Ma'am, appointing a client for a job. Yes. Any other example, Parkhi? Ma'am, Yes. Any example? Okay. Some other person will tell. Krish. Krish has already told. Parv, any other example? Good morning, ma'am. Good morning, beta. Any example? Any example of that transaction which can't be expressed in terms of money? No, ma'am. Acha, Manpreet, can you give any other example? Ma'am, employees, good working of employees. अच्छा, ठीक है, फाइन, हो सकता है. तनिष्का, can you give me some other example? Capabilities. Capability of employees. देखो बेटा, so many examples are there, like appointment of a manager, retirement of a manager, change of organizational policies. इन सबका organization के ऊपर effect होता है, लेकिन we can't record them because we can't express them in terms of money. तो this is the first money measurement concept कि हम उसी को लिखेंगे जिसको हम express कर सकते हैं in terms of money. Fine. Yes, you want to say something, Parv? You have raised Bonus can come. Bonus can come in this. Which one? Bonus. No, bonus can be expressed in terms of money, बेटा. Okay. बोनस हम मनी में देते हैं, ठीक है. अगर बोनस में हम कोई गिफ्ट भी देंगे तो गिफ्ट भी तो मनी में एक्सप्रेस हो जाएगा. तो बोनस कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी. फाइन. एप्रिसिएशन गिवन टू द वर्कर्स, उसको नहीं कर सकते. जैसे हमने किसी वर्कर को एप्रिशिएट किया तो उससे क्या होगा, बहुत अच्छे से काम करेगा. और
हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है, लेकिन हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी. फाइन. Yes, ma'am. Yes, next one. Going concern concept. What is going concern concept? Going concern concept assumes that a business firm would continue to carry out its operation indefinitely. That is for a long period of time and would not be liquidated in the foreseeable future. Liquidated मतलब क्या बताया था कि उसकी कंडीशन इंसॉल्वेंट हो जाना, बंद हो जाना. लिक्विडिटी मतलब बिल्कुल जैसे हम वाटर नहीं कहते थे, डाइल्यूट हो जाना. This is an important assumption of accounting as it provides the very basis for showing the value of assets in the balance sheet. देखिए एग्जांपल लिखा है. इसीलिए गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, जो एसेट्स की वैल्यू को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा बिजनेस आने बहुत लंबे समय तक इट विल गो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इसलिए हम अपनी एसेट्स की वैल्यू किसमें शो करते हैं, बैलेंस शीट में, और वो भी कौन सी कॉस्ट पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे. Accounting period concept. Accounting period refers to the span of time at the end of which the financial statement of an enterprise are prepared to know whether it has earned profit or incurred loss during that period and what exactly is the position of its assets and liabilities at the end of that period. यही आपको बताया था ना. Accounting period क्या बताता है, एक समय के बाद. देखो स्पैन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच, मैंने आपको कहा था कि वी हैव डिवाइडेड द होल लाइफ इनटू द डिफरेंट स्पैन, छोटे छोटे स्पैन में बांट दिए. एक स्पैन कितने समय का होगा, 1 साल का. What we have to do, we have to wait for a while after 1 year. क्या करेंगे, देखेंगे हमने पूरे उस ईयर में whether we have incurred profit or loss and what is the position of our assets and liabilities. हमने इसमें बेटा 3 चीजें पता करनी होती है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग. हर साल के बाद या तो प्रॉफिट या लॉस, दोनों में से एक होगा, और दूसरा क्या पता लगाएंगे, एसेट्स, और तीसरा लायबिलिटीज. हम इन तीनों चीजों का पता लगाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर. और आपको मैंने क्या बताया था, अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम, कोई बता सकता है हमने से अकाउंटिंग पीरियड कहाँ तक होता है? 1st April. Yes, from 1st April to 31st March. Yes, accounting period यहाँ से start होता है. After this period, we have to stop for a while. Profit and loss account, which helps to know the profit and loss, and the balance sheet, which helps to know the assets and liabilities at the end of that period. This is the new one we are doing. If you want to write, you can write it, because till now we have all revised. This is the new which we are going today. Cost concept. The cost concept requires that all the assets are recorded in the books of account at their purchase price. Cost concept कहता है कि जब आप किसी भी एसेट को, इसमें बिल्कुल आप हाईलाइट करेंगे वर्ड एसेट. ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट सिर्फ एसेट्स के लिए है, देखो स्पेशली मेंशन है एसेट्स. उसने कहा कि एसेट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट देयर परचेज प्राइस. हमने एसेट को जितने पे खरीदा है उसे रिकॉर्ड करेंगे. वो जो परचेज प्राइस है उसमें क्या क्या आएगा, उसको एक्वायर करने के एक्सपेंसेस, उसके ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस, उसको इंस्टॉल करने के एक्सपेंसेस, और मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज, सब चीजें उसमें जुड़ेंगी. ठीक है, जैसे कि आई एम गोइंग टू गिव यू वन एग्जांपल. सपोज करो आई हैव परचेज्ड वन मशीनरी फॉर ₹50,000. Is my voice audible to everyone? Yes, ma'am. Okay. Suppose I have purchased one machinery for ₹50,000. जितने की मैंने खरीदी है उसे क्या बोलेंगे, परचेज प्राइस. ठीक है, आप सपोज कीजिए 50,000 की जो मशीनरी है वो बहुत हैवी है, तो उसको मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन तक लाने में मुझे एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, कैरेज चार्जेस ₹500, और वो मुझे ही बेयर करने हैं. ₹500 मैंने दिए और वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आ गई. उसके बाद अब उसको इंस्टॉल करने के भी एक्सपेंसेस है, क्योंकि उसमें कुछ वायर्स फिट होती हैं.
सपोज कीजिए 500 रुपीज तो उसके कैरेज चार्जेस थे, उसको लाने का किराया, फाइन। अब उसको मुझे इंस्टॉल भी करना है, उसकी फिटिंग भी करानी है, तो मैंने एक वर्कर को बुलाया, उस वर्कर ने मुझे 200 रुपीज लिए उसको इंस्टॉल करने के, 500 ये 200 और, तो कितने हो गए एक्स्ट्रा 700 रुपीज, और वो मशीनरी कितनी थी मेरी 50,000 की, फाइन। अब जब उसने फिट किया उसके बाद उसने वर्किंग स्टार्ट कर दी, तो अब ये बताइए कि जब हम उसकी प्राइस लिखेंगे अपनी बुक्स में एसेट्स में मशीनरी, तो हम मशीनरी 50,000 लिखेंगे या 50,700 लिखेंगे? हाँ जी, कौन बताएगा आंसर? पर्व बताएगा। पर्व आपके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? एक्सक्यूज मैम, पर्व अनम्यूट हो आप। can you please pardon the question? ओके पर्व, पर्व आर यू एबल टू, इज माय वॉइस Ma'am, ऑडिबल? can you please repeat the question? हाँ जी बेटा करती हूँ। Yes, ma'am. पर्व आप बताइए, आपको क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? नहीं मैम, आप एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। हाँ मैं रिपीट करती हूँ बेटा, ध्यान से सुनिए। सपोज कीजिए आई हैव परचेज वन मशीनरी फ्रॉम द शॉप फॉर रुपीज 50,000, ठीक है। मैं मशीनरी लेने गई तो मुझे मशीनरी कितने की मिली? 50,000 की। अब मैंने क्या किया, उस मशीनरी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी तो लेके आना है, अपने गोदाम तक या अपनी फैक्ट्री तक लेके आना है। Yes, ma'am. उसको लाने का जो किराया है, कैरेज चार्जेस बोलते हैं उसे, वो मुझे पड़ा 500 रुपीज, ठीक है। मीन Okay, मेरे से ma'am. 500 रुपीज चार्ज किए गए। उसके बाद वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आ गई, मेरी फैक्ट्री में आ गई मशीन। Yes, ma'am. अब पर उसको इंस्टॉल करना पड़ा, उसकी फिटिंग हुई, फिटिंग करने के चार्जेस लग गए 200 रुपीज, फाइन। अब देखो मशीनरी कितने की थी? 50,000 की, 50,000. हाँ, और उसका किराया कितना पड़ा? 500 और 500 और इंस्टॉल करने के चार्जेस 200। अब मेरा 200. क्वेश्चन आपसे है कि जब मैं कॉस्ट लिखूंगी एसेट की बैलेंस शीट में, तो मैं 50,000 लिखूंगी या 50,700 लिखूंगी? 50,700. यस, यही वो कह रहा है, ये क्वेश्चन ने यही बताया है। उसने कहा है जब भी हम किसी चीज की कीमत लिखेंगे, किसी चीज की नहीं, जब हम किसी एसेट की कीमत लिखेंगे तो उस कीमत में वो सारी अमाउंट इंक्लूड होगी जो उसको यूज करने तक, उसको रेडी करने तक लगते हैं खर्चे। उसको खरीदने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इंस्टॉल करने का खर्चा, जब तक मतलब कि वो हमारे यूज में रेडी नहीं हो जाती है, तब तक जितने भी खर्चे आएंगे वो किस में जुड़ेंगे? उसकी कॉस्ट में। So the cost includes cost of acquisition, transportation, installation and making the asset ready to use. Clear है? अब clear है बेटा? Clear to everyone? Yes, it is clear to everyone. Yes, ma'am. Okay, okay, okay. Manpreet, is it clear? Yes, ma'am. ठीक है बेटा. Okay, next one. Dual aspect concept. This is very important concept of accounting. Very important. Means the whole journal entries, whole accounting is based on this concept. देखो आपको इसकी एक फोटो भी है, उसमें देखिए आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपने नोटिस की है इसमें, इसकी जो फोटो बनी हुई है उसमें कौन सी आपको एक चीज बहुत अच्छी लगी, इसमें इंपॉर्टेंट लगी? बता सकते हैं कोई मुझे? सुशांत आप बता सकते हो? अभी हम रीड नहीं कर रहे हैं, बिना रीड किए जो, हाँ जी बोलो क्या? नो मैम। नहीं। अच्छा धैर्य आप बताइए, आपने कोई चीज नोटिस की है जहां पे ये ग्रीन में ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट लिखा है जहां बना? हाँ जी बोलो। आपको इस पिक्चर से क्या नोटिस कर रहे हो? कोई भी बताइए जिसको कुछ दिख रहा है इस पिक्चर में, क्या पता चल रहा है? कंपैरिजन बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट। कंपैरिजन में क्या पता चला? वेरी गुड। क्या कंपेयर करने से क्या पता चल रहा है? They both are equal. यस, बस यही हमारा अकाउंटेंसी रूल है कि हर ट्रांजैक्शन में, ध्यान से सुनिए, हर ट्रांजैक्शन में डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल होगा। ऐसा भी हो सकता है कि डेबिट में बहुत सारी एक ही चीज हो, सपोज डेबिट में 10,000 है तो क्रेडिट में 2,000 2,000 2,000 5 बार होगा, बट हमेशा डेबिट शुड बी इक्वल टू
क्रेडिट. फाइन, दिस इज द रूल ऑफ अकाउंटेंसी. देखिए यहां से हमें ये क्लियर हो रहा है. डेबिट, क्रेडिट बोथ आर इक्वल. नाउ आई एम गोइंग टू रीड द कंसेप्ट फॉर यू. Dual aspect is the foundation or the basic principle of accounting. This is very important line. मतलब कि this is the main principle जिसमें कि पूरी accountancy based है. This concept states that every transaction has a dual or twofold effect and should therefore be recorded at two places. हर एक transaction के दो effect हैं. बेटा ये दो effect कहाँ से start हुए? ये actually start यहाँ से हुआ है market से. मार्केट में हमेशा दो पर्सन होते हैं, एक सेलर होता है, एक बायर होता है. जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं तो दोनों पार्टीज पे उसका इफेक्ट होता है, एक लेता है और दूसरा देता है. वहीं से ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है. ऐसे ही बिजनेस में भी हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, उसमें से एक क्या होगा डेबिट और दूसरा क्या होगा क्रेडिट. In other words, at least two accounts will be involved in recording a transaction. कम से कम दो अकाउंट होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं. अगर ज्यादा होंगे तो कैसे होगा? दो डेबिट हो जाएंगे, एक क्रेडिट, चार क्रेडिट, एक डेबिट. लेकिन दोनों को होना जरूरी है. और लेकिन उन दोनों की अमाउंट हमेशा इक्वल होगी. जैसे कि डेबिट कर दिया मैंने 1 लाख से, फिर क्रेडिट 50 हजार के दो हो जाएंगे. डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा. और कितने अकाउंट्स होंगे? कम से कम दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे इन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन. इसका सिंपल मीनिंग है कि हर ट्रांजैक्शन को दो एस्पेक्ट से देखेंगे. जैसे कि मैं एक एग्जांपल शेयर करती हूँ आपसे. यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है. सम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ध्यान से सुनना है. सपोज आई परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹1 lakh. I means my business. I purchase machinery for my business for ₹1 lakh. अब ध्यान से देखिए, इसके दो एस्पेक्ट क्या होंगे? मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस आ जाएगी और मेरी ऑर्गेनाइजेशन से कैश चला जाएगा. हो गए ना दो एस्पेक्ट. मशीनरी आ गई, मशीनरी को हम इन करेंगे, कैश को हम करेंगे आउट. एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा. कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, ये हम आगे जाके लर्न करेंगे, तब हमें पता चलेगा. लेकिन अब जब भी कोई ट्रांजैक्शन आपके माइंड में आएगी, आपने उसके दो एस्पेक्ट निकालने हैं. अगर मशीनरी परचेज की तो मशीनरी आ गई और हमसे आउट क्या हो गया? पैसा चला गया. तो हमेशा ऐसे दो एस्पेक्ट होते हैं. एक उसमें से डेबिट होता है, दूसरा उसमें से क्या होता है? क्रेडिट. तो ड्यूल एस्पेक्ट क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के टू फोल्ड इफेक्ट है, जिसमें से एक डेबिट होगा और दूसरा क्या होगा? क्रेडिट होगा. ठीक है? हाँ जी. अब बताइए, किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट टू एनीवन? जितने मैंने अभी कराए हैं आज, टुडे आई हैव डन ओनली 2 न्यू. One is the cost concept and other is the dual aspect concept. इसमें बेटा किसी को पूछना है? Any question? No ma'am. सान्वी, No, ma'am. आपका आज फर्स्ट डे था, तो have you able to learn something? Yes, ma'am. बेटा कोई क्वेश्चन पूछना है? अभी जो 5 चीजें बताई हैं तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ. आपको कुछ पूछना है? नो डाउट आपको उतने अच्छे से नहीं समझ आया होगा जो दूसरों को आया ना, बिकॉज बेटा फ्रॉम द लास्ट मंथ दे आर अटेंडिंग द क्लासेस, है ना. तो मे बी आपकी उतनी अभी नहीं, यू आर नॉट हैविंग द सो मच कैचिंग पावर एज कंपैरेटिव टू अदर्स, है ना. फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, यू कैन लेट मी नो टुडे सेशन, फॉर टुडे सेशन. No, ma'am. नो. अच्छा, और कोई? अच्छा ओके, तो मैं आपसे पूछ लूं उत्सव से. उत्सव, चलिए नाउ फॉर 1 minute ओनली. स्टार्ट एट द ऑप्शन स्टार्ट वीडियो एवरीवन. ओनली फॉर 1 minute. Click at the option start video. Yes, so that I can ask questions from you. Fine. Yes, what about these 5 people? Shushant, Dhairya, Utsav. हाँ जी, पर tell me something about cost concept. हाँ जी. बताओ पर. कॉस्ट ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बताइए बेटे, आपने जो अभी समझे कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है. अनम्यूट योरसेल्फ. Unmute yourself.
अच्छा, I think some audio problem is with Parv, that's why he's not able to speak. अच्छा मनप्रीत आप बताइए बेटा. Okay Parv, I got your message. Manpreet, beta, tell me something Yes, about cost concept. Ma'am, in this we should, if we purchase a new machinery for a business, we will include all the aspects like transport, the money used in transport, and for fitting the money used for fitting the machinery. We will include all these aspects. Yes, good. ठीक है. अच्छा परीक्षा आप बताइए इसी को फिर से cost concept क्या था? Once more. मैम कॉस्ट कंसेप्ट इज दैट कि मैम हम सारे कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे अकाउंटिंग के बुक में टिल परचेजेस टिल द यूज भी मतलब टिल वी यूज. बेटा देखो सबसे पहले हम कहेंगे cost concept is applicable for all the assets. Fine. हम कहेंगे it's applicable for the assets. फिर हम कहेंगे assets should be recorded at the price for which we have purchased it. And this purchase price include cost of transportation, cost of installation, and everything which is required to make it ready for use. Fine. Acha, Parki, tell me something about dual aspect concept. Ma'am, it is the concept in which we compare debit and credit equally. Tanishka, can you tell me something more about dual aspect concept? Yes, ma'am. Could you please pardon? Tell me something about dual aspect concept. Yes, ma'am. Ma'am, it states that every transaction will include two expenses that are debit and credit, and it will be recorded in two accounts. Yes, and the value of both should be equal. It means that every transaction should include twofold aspects. One is debit and other is credit, and the amount of both the accounts should always be equal. Fine. Chaliye, now let's meet tomorrow. But for the tomorrow's homework, you have to revise all these 6. First, I will just ask from all the 6 principles. Then we will move ahead. Fine. Chaliye. Okay, then you can leave the session, beta. Okay, bye.